अपोस्टल जी, इस बहन का नाम नगमा है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। 26 अप्रैल 2014 को इनकी मैरिज हुई थी और कहते हैं कि उसके बाद इस बहन ने और इनके हस्बैंड ने बेबी का सोचा, पर ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब ये बेबी का सोचते थे तो बहन प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे थे। इस बहन ने डॉक्टर को जब चेक करवाया और डॉक्टर ने बताया कि मेडिसिन खाने को भी दी, और 2018 में ये बहन प्रेग्नेंट जब हुए तो 4th मंथ में ही जब इन्होंने स्कैनिंग करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बेबी की धड़कन जो है वो बंद हो चुकी है। हार्ट बीट 4th मंथ प्रेगनेंसी में बंद हो गई और बेबी डेड हो चुका था। और उसके लिए उसके बाद उसी समय डिलीवरी करनी पड़ी और डिलीवरी के द्वारा इनका बेबी जो रिमूव कर दिया गया। और ये बहन और इनके हस्बैंड कहते हैं बहुत परेशान हो चुके थे। फिर इन्होंने फिर से डॉक्टर को चेक करवाया। और आपके हस्बैंड, इनके हस्बैंड को, आपके हस्बैंड का नाम क्या है सिस्टर? राजन कुमार। राजन कुमार। जब आपका पहला बेबी डेड हुआ तो आप दूसरी बार जब फिर आप ट्राई कर रहे डॉक्टर के पास गए तो आपको पहले से ही प्रॉब्लम थी जो बढ़ गई कि आपके जो शुक्राणु थे वो बिल्कुल डेड हो गए थे। बिल्कुल डेड हो गए थे। और ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली टेस्टिमनी है, इसलिए हम हस्बैंड वाइफ आपकी टेस्टिमनी खुद दे रहे हैं। क्योंकि पहले तो बेबी बहुत लेट हुआ, जब हुआ तो मर गया, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम थी उसके कारण बेबी लेट हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि आपके शुक्राणु टोटल डेड हो गए और आपकी जो वाइफ है, आपने लिखा हुआ कि इनके एग बनने बंद हो गए। हाँ जी। तो दोनों तरफ से चांसेस क्लोज हो गए थे, खत्म हो गए थे, डेड हो गए थे जी। आपने अपनी टेस्टिमनी में कुछ खास चीजें लिखी हुई हैं कि आप सुसाइड करना चाहते थे जी। आप बताइए खुल के वो क्या चीजें थी, वो आप खुल के बताओ, क्या क्या दिमाग में आता था, क्या सोचते थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ में ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀਗੇ हाँ पंजाबी पंजाबी च बोलो, खोल के बोलो। ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦਊਂਗਾ, ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗਾ ਆਪਣੀ। कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? 4-5 करे पापा जी डॉक्टर। और मेडिसिन खाई आपने जी। और डॉक्टर क्या बोलते थे आपको जब आपके शुक्राणु बिल्कुल नील हो गए, आपकी वाइफ के एग नहीं बनते? डॉक्टर की भाषा क्या थी आपके लिए? डॉक्टर कहते पापा भी ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਅਰਮਾਲ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਨਗਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੌਥਾ ਮੰਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਇਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ। ਚਰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਓ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ,
और जिन्ने ब्रांचेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ खुदावंद का रूह सब बीमारों को छुए रसौली वालों को छुए जितनों के बेबीज ने उनको छुए टच करे एक एक जन को जितने लोग यहाँ मौजूद हैं जितने ब्रांचेस में हैं जितने ऑनलाइन मौजूद हैं जितनों के पास बेबीज नहीं जितनों के पास फाइनेंस नहीं बिजनेस नहीं जॉब्स नहीं मैं आपको ब्लेस करता हूँ बेबीज के साथ बिजनेस के साथ फाइनेंस के साथ बड़ी टेस्टिमनी के साथ आप वापिस आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में और तुम लिखा कि जो ਉਹ प्रेयर हो रही सी ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਲਿਖਿਆ 24 ਫਰਵਰੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਹਟ ਮੈਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗਰਮਾਹਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਲਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ अच्छा एक और बात ध्यान दे विश्वास में और शक में क्या फर्क है बहुत लोगों को पवित्र आत्मा छूता है लेकिन उन्हें लगता है कि शायद गर्मी है शायद जोश आ रहा है चाहे म्यूजिक लगा हुआ है इस कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है और पवित्र आत्मा आपको छू रहा है तो कई बार आपको मालूम नहीं होता कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ कि नहीं छुआ इनके केस में इनको छुआ पवित्र आत्मा ने कि नहीं छुआ किस चीज से साबित होता है ये वो केस है कि जब बेबी पेट में डेड हुआ दोबारा जब टेस्ट हुए तो उसके बाद बताया कि अब शुक्राणु बनते ही नहीं नील हो चुके हैं वाइफ के एग नहीं बनता 5-6 डॉक्टर्स चेंज लाखों रुपया मेडिसिन डॉक्टर ने बोल दिया बेबी मेडिकली पॉसिबल नहीं है बहन जाती थी गुरदासपुर उसने चर्च के बारे में बताया ये पटियाला में जाते थे 24 फरवरी जिस दिन पवित्र आत्मा ने इनको छुआ और जिस दिन इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई अच्छा हम ये मान लेते हैं कि ठीक है कि ये एक जोश था ठीक है ये साउंड का असर था जोश था गर्मी थी नाच के ऐसा किया हम मान लेते चलो ऐसा हो गया पर जब नेक्स्ट दिन आप घर जाके आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो क्या आया मतलब मैं प्रेग्नेंट सी मैं अपने पति ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ मैं प्रेग्नेंट है मेरे पति बहुत खुश हो कितने इस बात को समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति को जब पवित्र आत्मा छूता है ना अगर उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है उसको यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं छुआ या मेरे को जोश आ रहा है या मेरे को लेकिन एक व्यक्ति जब किसी सिचुएशन में होता है जब एक व्यक्ति बीमार होता है खासकर फिजिकल बीमार होता है उससे जब पवित्र आत्मा छूता है उसे 100% मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझे छुआ इसीलिए जो लोग अविश्वासी होते हैं जो लोग बीमार नहीं होते जो लोग हट्टे कट्टे होते हैं कई बार वो दूसरों को बोलते हैं यार ये पखंड करता है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि ये पवित्र आत्मा है क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है जिन लोगों को जरूरत होती है मुझे मालूम है मुझे पवित्र आत्मा जब छूता था मुझे फिजिकल जब प्रॉब्लम थी मुझे बीमारियां थी जब पवित्र आत्मा मुझे छूता था मुझे मालूम होता था कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है लोगों के लिए वो पाखंड हो सकता था अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हो गया अगर मुझे वही चीज तब से 3 साल पहले कोई बताता तो मेरे लिए तब भी वो पाखंड ही रहता लेकिन जो व्यक्ति जिसके जीवन में गुजर रही होती है इसलिए मैंने कहा यहाँ पढ़े लिखे भी बैठे हैं डॉक्टर्स भी बैठे हैं आईएएस भी बैठे हैं तो वो सोच सकते हैं कि ठीक है जोश हो सकता है टेंट की गर्मी हो सकती है साउंड की गर्मी ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूं हो सकता है ऐसा लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो मेडिकली इम्पॉसिबल है बेबी को लेना जब अगले दिन पवित्र आत्मा के छूने के बाद घर जाता है प्रेग्नेंट होता है और अपने बेबी गर्ल के साथ वो टेस्टिमनी देने के लिए आता आप बताओ क्या है ये ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए तारीफ ऊंची वाली चाहिए हालेलुया हस्बैंड साहब आपका डिप्रेशन अब कैसा है ठीक है पापा जी जा चुका है हाँ जी कोई मेडिसिन नहीं कोई मेडिसिन नहीं पूरा आनंद पूरा आनंद बेटी मिल गई हाँ जी एंजॉय करो इसको पूरा हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया 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 जब बेटी बड़ी होगी ना इसकी वैल्यू समझ आएगी ये बड़ा आनंद देगी तुमको हालेलुया आमीन तारीफ करो जोर से हालेलुया इसीलिए जब कोई व्यक्ति शक करे कोई व्यक्ति खिलाफ बोले
आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो उस कंडीशन में नहीं है कि परमेश्वर की उस कृपा को, उस ताकत को, उस पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को महसूस कर सके। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने दुखों के लिए पौलुस कहता मैं धन्यवाद करूंगा जिसके कारण मैंने मसीह को देखा। अगर मैं बीमार ना होता, इतनी गहराई से पवित्र आत्मा मुझे कैसे छूता है, वो कैसे काम करता है, मुझे कभी मालूम ना होता। आप थैंक्स करो कि आप बीमार थे लेकिन खुदा के घर में हो, क्योंकि आप परमेश्वर को भी पालोगे और चंगाई को भी पालोगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। आज ये बेबी गर्ल 3 महीने 2 दिन की हो चुकी है। शक्ल दिखाओ इसकी। हालेलुया। रिसीव करो अपने लिए चर्च। मैंने कहा रिसीव करो अपने लिए चर्च। आमीन बोलकर रिसीव करो अपने लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।